Sorry, my mic was mute. All right, so hello everyone, assalamu alaikum. We are back with our 11th workshop, which is support vector machine classification. Most of you are already familiar with support vector machine kind of thing with regression workshop. This workshop is, of course, the same thing, but today we are not going to classify a textual data. It's the same textual data, but we are getting a little bit, we are stepping a little bit upwards towards upward level. And we are not, we are going to classify images today, but just 8 by 8 pixels, but we are not going to pre-process those images because those images are already being pre-processed. Why? Because image processing is itself a day-long chapter, and we will cover this in our coming workshops when we're gonna dive into this image processing thing. But before that, we are just performing image classification, or you can say a digits recognition more specifically. So in the data set today, we are having just digits from 0 to 9, as far I know, and we will just predict that by passing our image that what digit is this. Like मैं अगर एक इमेज पास कर रहा हूँ तो उस इमेज के अंदर कौन सी डिजिट है. एंड टुडे आई शेयर दैट कॉन्सेप्ट व्हिच आई मेंशन मेनी डेज बिफोर, कि जब भी हमारे पास कोई इमेज आती है वी नेवर give that all those resolution to this machine learning or deep learning. Deep learning तो फिर संभाल लेगा high resolution image, but machine learning cannot handle all such resolution. Like if you are passing 1000 by 1000 pixel resolution to any specific model in machine learning, then machine learning will gonna take so much time in production. But in deep learning, 1000 by 1000 may be not matter a lot for deep learning, because we have seen in Tesla cars and many major applications that deep learning can even able to take 4K images and classifies it in real time, because it's very complex and it has very dense layers of neural networks. So, well, that's another story. But today in machine learning, we're gonna classify images with 8 by 8 pixels, and we'll see that in our notebook. Let me share it. All right, and it's being shared. Okay, so it has been shared. Let me share the code with you as well. It has been uploaded to my GitHub. Those who have already followed me can access it. आप सिंपली यहाँ पे फॉक भी कर देंगे, so you can access it later at any time. आपकी अपनी GitHub पे भी आ रहा होगा मेरा कोड. All right, and here in Q&A, let me pass it. So you can access my GitHub code from WhatsApp group as well. You can access my GitHub code from Discord server and from Q&A and Teams. I have published it. All right. So what is support vector machine? Support vector machine is simply a class supervised learning machine learning model that uses classification and regression algorithm. But today we are just using classification algorithm for two group classification problem. Always remember, we never use support vector machine for multiple features, because it will not work in a very specifically and great manner. Because yeah, but in image we are having two things. One is image itself, and other is of course what you can say target, the labels we are having for particular image. लेकिन हर इमेज के अपने कुछ फीचर्स होते हैं. लाइक इमेज अगर हमारे पास 8 बाय 8 पिक्सल्स की है, तो जब हम उसको एरे में कन्वर्ट करते हैं, सो पिक्सल की कुछ इंटेंसिटीज होती हैं जो एरे में कन्वर्ट हो रही होती हैं, एंड देन दोज इंटेंसिटीज कैन मेक मल्टीपल सब फीचर्स. बट हमारा भी ताल्लुक अगर हम बात करें कॉलम से, तो हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स नहीं आ रहे, हमारे पास कॉलम एक ही, और उस एक कॉलम विच इज कॉलम ऑफ फीचर्स वी आर जस्ट हैविंग इमेजेस. If I let me give you an example, what I'm saying, मैंने already ये चीज़ बता रखी है already, but let me give you another example. Let me open GitHub, which is right, github.com. Just wait a second, and then let's go to data pre-processing, which this is our second workshop. All right, sometime this notebook crash, I don't know why. GitHub never hold this huge workshop. Okay. Going below.
All right. So here we just did a simple type of image processing using Sky Image, and we'll see that in application in our coming workshop pretty soon, inshallah. So now what's happening here? We are just reading the image from a directory, and then we are just seeing what is the shape of the image. Now this is just representing height of the image in pixels. This is representing width of the image in pixels, and this is representing number of colors used in the image. Means 3 is representing that this is an RGB image. Always remember that machine learning never accepts RGB image. It can accept RGB image, but if we are passing colors into it for classification of picture, so it means that we are passing it as a feature in it. So it means that if you sometime wearing a makeup on your face and other time you are not wearing a makeup on your face, machine learning model can confuse by identifying you, or maybe it assumes that you are both a different person. All right. So simple इसकी example ये ले सकते हैं that initial times when facial recognition was introduced in mobile applications, because it was on edge computing, it was not using cloud computing, so they have to make the model very optimized. They cannot use a high performing model because it requires a lot of computation power. Nowadays mobile phones are have so much power, so they can perform deep learning models, but in very initial times when we were having like Galaxy S2, S3 or iPhone 4, these kind of phones, in that time in that period of time, so smartphones were being shipped with using machine learning models. तो वहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास कि अगर आपने अपना फेस स्कैन किया, so in that lighting condition that mobile phone was highly able to recognize you, but in different lighting condition that mobile sometimes takes some time to recognize you, or maybe when you are having some high amount of bird, because even me, I never cut my butt off even within 30 days. So mobile was getting confused. Why? Because with a change of color it was not getting such a high accurate results for you. What deep learning was doing, what deep learning is doing nowadays, that it just notifies your current features, features that is resembling your structure of your face. It can be under your eyes, it can be your eyes even, and there are many multiple things. Machine learning can also perform those features as well, but whereas deep learning can input multiple number of pixels, so it's more advanced, and deep learning learns over the time as well. When you if, for example, if you have saved a facial recognition, you have saved your sample in the mobile phone, so over time it will get more generalized or more generalized with a span of time. But in initial days of time it's not such highly accurate. We have seen in our budget smartphone as well. So what inside or what the backside of that phone is happening, that image has been transformed into a grayscale. आप जो भी image अपनी sample में दे रहे होते हैं, that image has been transformed into a grayscale image, and it resizes your image. For an instance, if we took the resolution of our smartphones today, it's pretty high. Even the quality of smartphone is not good. But if we took the resolution of smartphone, for example, I have a low-end smartphone, but it's still 5 megapixel. It means that it has 5 million pixels. 5 megapixel is representing 5 million pixels, the combination of both height and weight. So it resized that image into a smaller resolution, maybe like 100,000 pixels, a pretty low image. Then it transformed it to, then we reshape it to a we flatten that image into an NumPy array. Not, I don't know what type of thing we do in mobile phones. जरूरी नहीं है कि मोबाइल फोन में वो नंपाई एरे ही बन रहा हो सकता है कि वो लिस्ट पे भी काम चल रहा हो, बट या नंपाई एरे ना भी, बिकॉज समटाइम्स मोबाइल फोन्स आर यूजिंग C++ for these kind of things, for high-end security, or maybe you can say for more integration, for high-level integration with hardware. So they sometimes are using C++ for it. But when it comes to अदर एप्लीकेशंस, तो वो नंपा एरे में डेवलप पूरी होती है, और उसके बाद अब जब जब आप अपनी इमेज रिकॉग्नाइज करते हो, सो विद इन अ माइक्रो सेकेंड योर इमेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रे स्केल फॉर्मेट, then your grayscale image is being resized. Then after being resized, it's compared to the samples machine learning is having. Then it predicts that it's you or not. समटाइम्स मोबाइल फोन सेज अगर प्रोबेबिलिटी 75% ज्यादा आ रही है तो उसको बोल दो कि हाँ भी ये है, 80% ज्यादा आ रही है हाँ भी ये है,
अगर 80-90% ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर उसकी आंखें बंद हैं तो भाई नहीं बोलोगे वो है. If his eyes are closed, so leave it the mobile phone. For example, I have a normal smartphone and I have a Galaxy S10. So they both have a feature that whenever I try to unlock my face with my eyes locked, eyes closed, so it never unlocks. Why? Because it has that unique feature in it while training the model. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके हम इमेज प्रोसेसिंग में मजीद देखते रहेंगे ओवर द स्पेन ऑफ टाइम. आज बताने का मकसद ये था कि मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी इमेज को डायरेक्टली इनपुट नहीं ले लेता, हमें उस इमेज को नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है. एंड बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू ए नंपाई एरे, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू ग्रे स्केल. As you can see here, we are resizing it, doing multiple things here. So, all right. So here we are having data which is already pre-processed. So before moving towards data, let us understand again what is support vector machine. So let's get back to the support vector machine. So the objective of the support vector machine algorithm is to find a hyperplane in a n-dimensional space. N is the number of features that distinctly classify the data points. Always remember, it's my personal point of view. The support vector machine is the best algorithm when you are having two classes, when you have to identify two classes. But whenever you are having more than two classes, support vector machine sometimes loses its power. Then we have to move towards maybe k-nearest neighbor or random forest. Random forest is the super classy algorithm, but it's never important that you always going to implement random forest in every kind of problem. Sometimes KNN perform better, sometimes logistic perform better. So it depends what type of data you are having. All right. So to separate the two classes of data points, there are many hyperplanes that could be chosen. Or so our objective is to find a plane that has the maximum margin, the maximum distance between data points in both classes. Maximizing the margin distance provides some reinforcement so that future data points can be classified with more confidence. इतनी बड़ी भाषा आपने पढ़ ली, तो इसको आप उर्दू में समझते हैं that what's happening in this below figure. यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जिसको हम डिनोट कर लेते हैं क्लास 1 से, और यहाँ पे हमारे पास डाटा है जो कि हम इसको डिनोट कर लेते हैं क्लास 2 के. बोथ आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दी देयर ओन कोऑर्डिनेट वैल्यूज. वी आर नॉट just looking at the coordinate values. Now, what will support vector machine perform? Support vector machine will reinforce the way to put the hyperplane. What is the meaning of reinforcement? कि पहले वो put करेगा, it will say नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, then it will put again, then it will put again, then it will put again. It's kind of reinforcement thing, but it's actually a supervised learning only. Now, what it is doing right now here? For example, इसने यहाँ पे रखा hyperplane और उसने यहाँ check किया कि यहाँ पे जो मेरे मार्जिन थे, क्या दोनों क्लासेस के दरमियान की जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं क्या बराबर उनके मार्जिन बन रहा है. उसने कहा नहीं. उसने दोबारा रखा, वो रखते रहेगा जब तक कि उसको एक परफेक्ट हाइपर प्लेन ना मिल जाए, या यूं कहते हैं कि उसको एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ना मिल जाए जिसके दोनों मैक्सिमम मार्जिन जो होंगे द लास्ट एलिमेंट या द बाउंड्री एलिमेंट ऑफ एनी क्लास जो उसके अंदर लाई कर रहे होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं. सो नेवर मैटर्स बिकॉज दोनों हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं सेम क्लास में आ रहे हैं. व्हाट इफ दिस एलिमेंट वाज प्लॉटेड हेयर, तो अगर यहाँ प्लॉटेड होता तो हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे होते, तो बस ये जो हमारा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन है थोड़ा सा और कर्व हो जाता, उसको डिस्टेंस वहाँ पे वही मिल रहा होता, बस यहाँ पे थोड़ा और कर्व होके उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी उसको मिल जाता. सो दिस इज हाउ इट्स परफॉर्मिंग. रिग्रेशन के अंदर भी मार्जिन देख रहा होता है, बट दैट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. हियर इन क्लासिफिकेशन वो दो क्लासेस के दरमियान मार्जिन देख के अपना हाइपरप्लेन खुद ड्रॉ कर रहा होता है. इट्स नॉट लाइक लीनियर रिग्रेशन के बस 0 1 है तो बस नीचे से लेकर ऊपर तक निकल गया, और ठीक है, इस तरह का नहीं है सिनेरियो यहाँ पे. और न ही यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह का है लाइक केएनएन के अंदर होता है कि वो अपने सर्कल ड्रॉ करता है, अब आप उसको जितने मर्जी नेबर दे दें. In this we don't need to pass any kind of parameter. इसमें हम kernel pass करते हैं, but we are not going to pass here right now the kernel thing because it's automatically optimized data set. So यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्यूचर में हम kernels को भी देखेंगे what is kernels. So for example अब यहाँ पे हमारे पास large margin भी है and now we are having a small margin as well. So
there is not a huge difference between if you are having a small margins or if you are having maximum margin. What it does कि उनके बिल्कुल perfect optimal distance के अंदर perfect margin distance के अंदर वो एक hyperplane आपका algorithm draw करता है. You don't need to understand algorithm in the core. मैंने देखा है कि मैथ से बहुत लोग बेजार हो जाते हैं, but when it comes to naive Bayes आपको मैथ्स actually पढ़नी पड़ेगी. But if you want to look the algorithm in mathematical details of the this algorithm, you can Google it and you can see. And when you don't understand, you can come back to this tutorial. All right. All right. So getting started with SVM classification. So here we are importing some libraries. Import NumPy as NP, import pandas SPD. We are importing NumPy for algebraic mathematics and arrays, and we are importing pandas. Oh, go away. We are importing pandas for data input output and data management. Matplotlib as visualization, data visualization. We are importing SVM and datasets. Right now, we are just importing datasets from SVM itself, and SVM is the major thing today to perform. SVM is support vector machine, and we will use svm.svc. SVC represent support vector classifier. When we were performing regression, so we were using svm.svr, which was resembling as support vector regression, but now it's classification. So let's go further. sklearn.model selection, we are using here train test plate for splitting a data set. Then we are using accuracy score and confusion matrix functions from metric library using sklearn package. All right. So dataset हम लोग आज sklearn का खुद का ही use कर रहे हैं, and if you want to see this dataset, so no worries, you can go on the internet and just search here sklearn. Okay, digits इतना मशहूर है कि सबसे पहले नंबर पे आ रहा है. And you can navigate to anywhere. For example, if you navigate to this on GitHub, समझ में फिर भी नहीं आएगा आप लोगों के, but just for your knowledge, ये तो किसी और ही फॉर्मेट में कि GitHub भी समझ नहीं पा रहा. So just leave it here. ये खोल लेते हैं और ये खोल लेते हैं, और मुझे लगता ही नहीं है कि ये कोई बेहतरीन किस्म का, बिकॉज ये CSV को उन्होंने कंप्रेस किया हुआ है, और जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये बहुत ही वियर्ड फाइल बनेगी. ये डायरेक्ट डाउनलोड ही होगा, ये आप व्यू कर लें भले से तब भी डाउनलोड ही होगा ये. यस, इट जस्ट डाउनलोडेड ऑन माय क्रोम. पर अब इसको मैं अगर व्यू करना चाहूँ, सो आई थिंक आई एम नॉट हैविंग WinRAR राइट नाउ टू ओपन दिस. सो जस्ट लीव दिस हियर. हम इसको वैसे ही पाइथन में विजुलाइज कर लेते हैं. बाद में आपके पास जब टाइम हो तो आप खुद भी बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं डेटा सेट को मैनुअली ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूजिंग WinRAR. All right. So let me see if there is any sort of Q&A. All right. So someone asked that what is the difference between small margin and high margin? कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो बस ये बता रहा है कि आपके पास स्मॉल मार्जिन हो या हाई मार्जिन हो तो उसमें आपको खास फर्क नहीं होगा. मतलब इट्स लाइक आपके पास डेटा सेट है दोनों जगह पे, बस थोड़ा दूर दूर है तो उसको ईजी होता था क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ऐसा कभी है नहीं कि स्मॉल मार्जिन भी हो तो उसके लिए क्लासीफाई करना कोई मुश्किल ना हो. हाँ, इन रियल सिनेरियो दैट इफ यू आर हैविंग अ डेटा सेट विच इज सर्कुलर, जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से हो, सर्कुलर हो, और वो क्लास 1 में प्रेजेंट कर रहे हो, फिर उसके ऊपर एक अलग से एक बॉर्डर बन रहा हो, वो क्लास 2 में प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस सिनेरियो के अंदर आप KNN ज़्यादा अच्छा रहेगा. KNN ज़्यादा और भी अच्छे एल्गोरिथम में जाके हम पढ़ेंगे. ऐसा यूजुअली सुपरवाइज लर्निंग में नहीं होता, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है, तो वो भी हम जाके देख लेंगे. नो, इट्स नॉट अ बिग डील. All right, let me see more questions. Okay, wait. Okay, more questions. अच्छा, ऐसा कोई सीन होता है कि ऑप्टिमल हाइपरप्लेन नहीं बने? बिल्कुल नहीं होता. बिल्कुल हमेशा ये हाइपरप्लेन पूरा डेवलप करेगा, थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन ये हाइपरप्लेन पूरा खुद डेवलप करेगा. बहुत आसान वर्कशॉप है आज की, अगर आप जरा एक ओवरव्यू ले लें. अच्छा, इसमें एक बंदे ने बोला है दैट व्हाई वी ग्रे स्केल दी इमेजेस.
सो अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा दूँ पहले ये आप इमेज देखें अगर, तो ये एक 2 है जो यहाँ प्रेडिक्ट भी कर रहा है कि हाँ ये 2 है। तो ग्रे स्केल इमेज भी इसने प्रेडिक्ट कर दी, लेकिन अगर ये कलरफुल होती तो ये डिफरेंट कलर इमेज को, मतलब 2 को भी, इस 2 को भी, इस 2 को भी, डिफरेंट कलर इमेज को अगर हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट ना कर रहे होते तो मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो रहा होता हमारा। तो दैट इज वाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ग्रे स्केल, ये पहले बता चुका हूँ। All right, someone has asked why we have imported matplotlib.cm. Oh, sorry for that. Thank you for telling me. So we have imported matplotlib.cm for color mapping. जो आगे जाके हम ग्रेस्केल में कलर मैपिंग कर रहे हैं, we will see this after at the end, at the very end. All right. So we are just importing a dataset from datasets. Dataset कहाँ से आया हमारे पास? Dataset यहाँ से आया हमारे पास sklearn से, और हमने यहाँ से dataset import कर दिया. And we are using low digits method here. Then we'll do, okay, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो प्रिंट डिजिट्स कर सकते हैं, वो इतने डिजिट प्रिंट कर देगा, फिर आप नीचे करते रहिएगा। राइट, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक नई तरह की एक वो चीज़ है जिसमें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं लिस्ट जिप। बहुत सारों को ऑलरेडी पता होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो आगे जाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं दैट व्हाट डज जिप एक्चुअली परफॉर्म and why we are then making again it to converting it to list. तो जरा देखते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से कोलैब खोल लेता हूँ। दिन को कोलैब की आदत हो जाए तो फिर जुपिटर नोटबुक कभी नहीं खोलता है, बिकॉज इट्स फ्री एंड इट्स पावरफुल। रफ प्रैक्टिस, ऑलराइट। If my quality if got dropped, so please let me know. All right. Okay, so now team saying me that bad network quality. Let me see it. Let me. All right. I have restart my ping rate. All right. Okay, someone has. Okay, so if there's any problem, you can ask me right away. Let me see Q&A again. Okay, where is SVM used application? Good question. So SVM in old time was mainly used for face detections, bioinformatics, for example, fingerprint recognitions. In the very old time, so SVM was the major holding application in this. और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आज भी आप इंडस्ट्री में जाएं और मशीन लर्निंग आपको यूज करनी हो, so SVM and random forest are the major algorithm which are being used in a high amount of ratio, because ये काफ़ी तक के सिनेरियोज कवर कर लेते हैं। जहाँ 2 फीचर होते हैं वहाँ SVM बादशाह होता है, जहाँ मल्टीपल फीचर्स हो जाते हैं वहाँ से रैंडम फॉरेस्ट बोलता है अब मेरी जगह है, मैं आऊँगा। सो ऑल राइट, तो मतलब बेसिकली ये कंप्यूटर विजन से पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन ही इन सबको डील कर रहा था, इतना अच्छा एल्गोरिथम है। So for example, we are taking a list into A 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने डाल दी वैल्यू B A B C D। यहाँ पे पहले से आपके पास आउटपुट आ गया तो आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, सो नेवर माइंड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास A B C D आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी 1 के साथ A हो, 2 के साथ B हो, 3 के साथ C हो, 4 के साथ D हो, इस तरह के सेट्स मेरे पास डेवलप हो जाए। अब मैं अपने पास अगर सेट डेवलप करना चाहूँ, एक तरीका ये कि मैं डिक्शनरी डेवलप कर लूँ, लेकिन वी नीड लिस्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे zip A, B। अगर हम इसको यहाँ पे zip लिखते हैं, so it will, all right, please remove this। तो अगर यहाँ पे हम zip लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा। Why? Because this is actually developing and making an object of different set of tuples। और अब क्या हमें चाहिए कि हम डिफरेंट set of tuples को कन्वर्ट कर दें लिस्ट के अंदर। सो नाउ वी नीड टू टाइपकास्ट इट ताकि मशीन लर्निंग हमारी अंडरस्टैंड कर सके। तो नाउ इफ यू कैन सी दिस, 1 के साथ हमारे पास A है, 2 के साथ हमारे पास B है, 3 के साथ हमारे साथ C है, 4 के साथ हमारे पास D है। सो मीन्स दोनों वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे साथ क्या हो गई, जिप हो गई हैं, और वो हमारे पास लिस्ट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। मतलब इनका अगर हमें एरे बनाना हो
सो नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दिस बिकॉज लिस्ट का तो हम अरे आराम से बना सकते हैं, न्यूमेरिकल अरे. So if we go back to this digits loading, तो यहाँ पे हमें डिजिट्स लोड करने के बाद इमेज एंड लेबल में हमने क्या डिफाइन किया बेसिकली कि इस डिजिट्स के अंदर एक कॉलम है इमेजेस और इस डिजिट्स के अंदर एक कॉलम है टारगेट. अब जब आप इमेज प्रोसेसिंग करते हो ना तो आपके पास एक जगह पे ही आपके पास सारे के सारी इमेजेस टारगेट कोरस्पॉन्डिंग मालूम होने चाहिए. इस तरीके से हमने क्या किया, हमने बाकी जितने भी फालतू का फीचर उसमें थे एक्सक्लूड कर दिए. तो इमेजेस और टारगेट, अब इमेजेस टारगेट मुझे कैसे मालूम हुआ, तो मैं ऑलरेडी डेटा एक्सप्लोर कर चुका हूँ. यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन द गिटहब. आज हम प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, प्री प्रोसेसिंग कल से दोबारा करेंगे क्योंकि आज एक स्टेप ऑलरेडी हम बढ़ गए हैं, इमेज प्रोसेसिंग पे, इमेज रिकॉग्निशन पे आ गए हैं. तो मैं नहीं चाहता आज डायरेक्ट इमेज प्रोसेसिंग करें. आफ्टर दिस वी कैन सी डिजिट्स डॉट इमेजेस. अगर हम यहाँ पे डिजिट्स डॉट इमेजेस देखें तो यहाँ पे हमें एक 2-dimensional एरे मिल जाता है, लाइक इन एंड इट हैज मल्टीपल वैल्यूज एंड मल्टीपल वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग different intensities of colors. Like अभी सारी ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, so it means if there is a zero, so if as far I know zero represents प्योर वाइट इमेज. ये बिल्कुल उलट होता है, वैसे यूजुअली अगर आप जीरो डालो तो इट्स मीन ब्लैक, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चीज चल रही होती है एज फार आई नो. बट इफ यू सी इट फर्दर तो ये बहुत बड़ा एक तवील लंबा एरे है जो उसने बना दिया है. ये बीच में डॉट का मतलब ये कि ये सब पूरा नहीं दिखा रहा है, सब शुरू को दिखा रहा है और आखिर का दिखा रहा है. Now why we are seeing this array when we are importing these images, because these images has already been transformed into numpy array. As I've already told कि हम इसकी प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, आज हमारे पास array फॉर्म में images होंगी. अगर हमको इस इमेज को विजुलाइज करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं. क्या करेंगे कि हम इसी इमेज को कलर मैपिंग के थ्रू प्लॉट के अंदर एक मैटप्लॉट का फंक्शन है इमेज शो का, इमेज शो का, और उसमें हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं. वी विल सी दैट लेटर. Now if we do target digits to target, so we can see in this we are just having the labels like 0 1 2 8 9 8. ये इसके बीच में बहुत सारे होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 8 तक कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं उन इमेजेस के, जिनको अभी हमने ऊपर एक जिप किया, जिप करने के बाद लिस्ट किया ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा फ्रेम मौजूद हो जाए. Now what we have to do, जिस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट को रीशेप कर रहे होते थे तो उस तरीके से हमको अपनी इमेज को भी रीशेप करना है. बट इमेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं आएगा बिकॉज देयर वी वर हैविंग जस्ट 1 कॉलम, सो वी वर पासिंग हियर विद 1, और फ्लैटन के लिए हम -1 यूज कर रहे थे. बट नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल सैंपल्स हियर, और रेजोल्यूशंस का भी बड़ा फैक्टर होता है. सो वी सिंपली विल फाइंड द n वैल्यू ऑफ n सैंपल्स. हाउ, हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिट्स डॉट इमेजेस और उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे. अगर हमें वैसी वैल्यू मालूम करनी हो कि L सैंपल की वैल्यू क्या है तो हम यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा बिग डील. 1797, टोटल हमारे पास 1797 सैंपल्स हैं जिसके ऊपर आज हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन होने जा रहा है. ये भी बहुत 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 ज़्यादा होती हैं. अगर आप अपने कंप्यूटर पर करने चले जाएंगे तो इट गोना टेक सम टाइम इमेजेस के मतलब, लेकिन हमारी इमेजेस इस दफ़ा 8x8 पिक्सल्स हैं, सो या इट्स ओके, हो जाएगा आराम से. ऑलराइट, सो ये n सैंपल्स हमारे पास में आ रहा है. देन वी आर यूजिंग इट -1 जिससे हम रीशेप ऑलरेडी करते हैं. सो ये हमारे पास एक तरह का ट्यूपल बन रहा है एंड देन वी आर पासिंग इट इनटू रीशेप, और फिर हम इसको इमेजेस को रीशेप करके किस पर ट्रांसफॉर्म स्टोर करा रहे हैं, डाटा के अंदर स्टोर करा रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो भी नंपाई एरे आ रहा है वो उसकी ये हमारे पास ये शेप आ रही है, बता भी रहा है. लेट्स रन दिस अगेन वंस अगेन. अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास की ये शेप आ रही है. ऑलराइट, तो क्योंकि 8x8 64 ही होता है तभी वहाँ पे 64 दे रहा है, लेकिन हमारे पास सिंगुलर फॉर्मेट के अंदर है. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव जस्ट फ्लैटन आवर इमेजेस. रीशेप फ्लैटनिंग के लिए यूज होती है एंड अगर टेक्निकल टर्म में बात की जाए तो. नाउ वी विल ट्रेन आवर मॉडल. बिफोर ट्रेनिंग आवर मॉडल, इफ देयर इज समवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, सो यू कैन आस्क राइट अवे. Right, -1 is representing the that we are reducing the dimension of our images. हम डुअल डायमेंशन इमेज से उसको सिंगल डायमेंशन इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या यूं कह रहे हैं कि उस इमेज को हम फ्लैट कर रहे हैं हम. तो उसके लिए हम -1 यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर यूजिंग
टेक्सचुअल डेटा सेम वी वर यूजिंग माइनस एज वेल, कि हम उस डेटा को फ्लैट कर रहे होते हैं ताकि मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर एक सिंगल रॉ में डेटा जा रहा हो. So any further question? Usually there's always a delay for up to 20 seconds. तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे आप लोगों की जो बात है वो 20 सेकंड बाद मेरी आवाज़ आपके पास 20 सेकंड बाद आ रही है, वीडियो भी 20 सेकंड बाद आ रही है, तो आपके सवाल मेरे पास उस देर से ही आएंगे. सो अगर बाद में कुछ सवाल होंगे तो देख लेंगे. So now we are training our model. So now we are using SVM model as imported from SQL library and just being trained on 75% of the digits. हमने एक अलग सेक्शन ही बनाया हुआ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, हम इसी में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देंगे. और किस तरह कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो वी आर फेचिंग ट्रेनिंग सेट 75% ऑफ इंटायर डेटा सेट. हमने एक वैल्यू सेट कर दी कि भाई जितना भी डेटा सेट है उसको 75% हमारे पास आ जाए एंड रेस्ट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग. अब यहाँ आ गया है ट्रिकी पार्ट. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम आराम से कर लिया करते थे व्हेन वी हैव टू परफॉर्म ट्रेन टेस्टिंग ऑन टेक्सचुअल डेटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो फंक्शन एक्चुअली नहीं काम कर रहा होता. ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है ना, ये फंक्शन नहीं है, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक वेरिएबल है. ये वो वेरिएबल है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स, इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू है. फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा सा लॉजिकल माइंड है, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग n सैंपल्स. n सैंपल के अंदर हमारी वैल्यूज क्या हैं, 7, 19, 17, 97 एज यू कैन सी हियर. अब 17, 97 हमारे पास सैंपल्स है टोटल. हम चाहते हैं कि उसका 75% जो सेट है वो हमारे पास फॉर ट्रेनिंग सेट यूज हो जाए और रेस्ट जो 25% सेट है वो हमारे टेस्टिंग के लिए यूज हो जाए. तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1975 को मल्टीप्लाई बाय 0.75 और उसको कास्ट कर दिया इंटीजर में, ताकि हमारे फ्लोटिंग वैल्यू ना रहे, पॉइंट्स वैल्यूज ना रहे, ताकि 0.5 अगर आ रही होगी तो मॉडल कंफ्यूज ना हो जाए. तो क्यों किया हमने ऐसा, बिकॉज बिलो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम डायरेक्ट मॉडल डॉट फिट के अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और यहाँ पे हम इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भी आगे लिख रहे होते हैं. What are we doing it here? जरा आप थोड़ा सा भी अगर हम उसको गौर करें तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा. उसको हम रफ प्रैक्टिस में देख लेते हैं एक दफा. That what currently are we doing here? For example, n सैंपल्स हमने ले लिया, इसकी आप प्री डिफाइंड वैल्यू ले लेते हैं लाइक 1970, 1797, यही वैल्यू थी मेरे ख्याल से. तो ये हमने n सैंपल्स के अंदर की वैल्यू हमने स्टोर करा दी है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डिवाइड इट फ्रॉम बाय, we will try to multiply it by 0.75. so if you see n samples multiply by 0.75, तो हमारे पास वैल्यू आ रही 1347.75. तो ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज आ गई हैं. हमें इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा बिकॉज इस 0.75 गोना कंफ्यूज दैट. कहाँ कंफ्यूजन होगी वो भी हम देखते हैं. सो इंटीजर एंड नाउ we'll enter this. So now we are getting a perfect value 1347. अब 1347 का मतलब ये है कि हमारे पास 1347 सैंपल्स आने वाले हैं. That's the thing I'm gonna tell you. अब ये हम इसको स्टोर करा देते हैं किसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये इसमें मैंने स्टोर करा दिया. अब फॉर एग्जाम्पल इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं फिलहाल समझाने के लिए 5, और ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए. और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है इसकी, अगर ये बताता है मैं कोला वैसे ही नहीं बता रहा. 3, तो हमारे पास 75% डेटा सेट के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू हमारे पास ट्रेन सेट के अंदर आ रही हैं. सो लेट मी फिक्स द टाइप ऑफ. ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को पहले रन करके देखें तो, ताकि अगर जिसने नहीं देखा तो देख ले, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही होगी. सो हमें इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ 70 हमें नंबर मिल रहा है कि भाई करंट सैंपल्स के इतने नंबर ऑफ हमारे पास वो हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे फायदा क्या हो रहा है.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। सही हो गया, 5 हमारे पास सैंपल आ रहा है। अब क्या हुआ, हमने इस 5 का 75% चाहिए हमको। जब हमें इस 5 का 75% चाहिए होगा ना, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए कॉलम और यहाँ मैं लिख दूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अभी क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल 5 थे, उनका 75% 3 बन रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग कॉलम के बाद 3 लिख रहे होंगे तो ये इनिशियल वैल्यू से लेके अपनी थर्ड लोकेशन तक जाएगा। समझ में आई? इनिशियल वैल्यू से लेके थर्ड लोकेशन तक जाएगा, और ये थर्ड लोकेशन जो होती है ये एक्सक्लूसिव होती है। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू डाले होंगे तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से स्टार्ट कर लेंगे फॉर टेस्ट सेट, और यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे। सो इफ यू सी दिस, ये बिल्कुल पाइथन के कंसेप्ट्स हैं, बट इट्स माय ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज यू कैन कंफ्यूज इट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 आ गया, मतलब हमारे पास इनिशियल के 75% डाटा सेट्स आ गए। अगर हम इसको यूं लिख दें, लाइक हम बोलते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से स्टार्ट करो और आखिर तक चले जाओ, मतलब सेमी कॉलम हम आगे लगा रहे हैं। सो इट विल परफॉर्म लाइक दिस 4 5। तो ये क्या हुआ कि ये जो था हमारा 75% डाटा, ये बन गया हमारा ट्रेन टेस्ट, ठीक हो गया। और ये जो था हमारा सेट या 25% डाटा कह लें, ये बन गया हमारा टेस्ट सेट। ये 75 पे 3 मेरे इसलिए आई है क्योंकि 80 पे जाकर 4 होती हैं, तो मैं टाइप कास्ट कर दिया तो उसकी 3 आ रही है। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम लोग पर डाटा सेट किस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इमेजेस का एरे भी स्प्लिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट पर्सन हु सेड, जब आप एग्जांपल के साथ समझा दो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर दैट। ओके, हाउ इट जनरेट्स मैट्रिक्स बेस्ड ऑन इमेजेस। Okay, let me open an example on the internet. Google is the guru, man. Image and convert it into array. आपको एक इमेज फॉर्मेट के अंदर अगर मुझे एग्जांपल मिल जाती है, ओहो राइट, तो यहाँ नहीं मिल रही मुझे एग्जांपल। ओके, इमेज into numpy. All right. So maybe this is going to be perfect to make you understand. क्योंकि अभी इतना डिटेल हमने खुद से अभी प्रोसेस किया नहीं, तो मैं आप लोगों को भी खुद से दिखा नहीं सकता, तो इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद से दिखा दूंगा तो फिर हम प्रोग्राम के आखिर तक पहुँच चुके होंगे ना, उसमें भी टाइम है। क्या हुआ भाई, खोल दो, ये डाउनलोड कर रहा है, ये हर चीज़ को डाउनलोड ही कर देता है। सो इफ यू ट्राई टू व्यू दिस, ये मैं सपोर्ट ही नहीं हो रही मेरे पास। ऑल राइट, सो वी विल क्लियर योर क्वेश्चन इन द एंड के अंदर मैंने numpy array से इमेज विजुलाइज करवा रखी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, we'll see that soon. All right, so here we are just passing the 75% of n samples into train test split. तो यहाँ पे हमने रफ वर्क करके देख लिया कि क्या हो रहा है। तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हमारे पास उतनी वैल्यूज आ रही हैं। इंट लेट मी रिमूव दिस बिलो बार। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हमारे पास उतनी नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं हमारे पास 1797 वैल्यूज थी, अब हमारे पास 1347 वैल्यूज आ रही हैं। जब हम यहाँ पे इधर लिख रहे होंगे डाटा कॉलम और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे वही हमारे पास सैंपल्स आ रहे होंगे जो स्टार्टिंग में 1347 सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से हम लिख रहे होंगे डिजिट्स डॉट टारगेट, और फिर हम लिख रहे होंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा तो मतलब 0 से लेके 1346 तक, क्योंकि 1347 ये इंक्लूड नहीं करता, 1346 तक ये सारे के सारे सैंपल्स जो हैं अपने पास क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब स्टोर करा देगा। तो मॉडल डॉट फिट के अंदर हम यूजुअली क्या पास कर रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मॉडल डॉट फिट के अंदर हम यहाँ पास कराते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्स और वाई ही पास करा रहे हैं। अगर एक और एग्जांपल ले लें तो मॉडल डॉट फिट के अंदर हम क्या पास करा रहे होते हैं, फीचर्स, फीचर ट्रेन,
यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कोलैब एक्सपाई क्यों दे रहा है, बिकॉज अंदर जाके ये आपके सारे वेरिएबल का नाम एक्स हो जाता है। फीचर ट्रेन, एक्सक्यूज मी, टारगेट ट्रेन। ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास एक फीचर्स है और ये हमारे पास टारगेट ट्रेन सेट है, टेस्ट सेट नहीं है। टेस्ट सेट तब होगा जब हम स्टार्टिंग में इसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम जगह छोड़ देंगे। एक काम करते हैं, उसको एक अलग से जगह पे अलग ले जाते हैं, एक अलग सेल बना देते हैं इसका। गिटअप से आप खुद ही कर लिएगा, गिटअप पे मेरा मूड नहीं है दोबारा कमेंट करने का। ऑल राइट, सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई एसवीसी की मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की कुछ डिफॉल्ट यू कैन से पैरामीटर्स थे जो उसने ज्यूम करे। हमने कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है हमको। सो कोई क्लास का वेट नहीं है, कैसे साइज हमारे पास ये डिग्री 3 है, गैमा स्केल, कर्नल आरबीएफ है। तो कर्नल चेंज करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, आपकी अगर मर्जी है। अगर आप चाह रहे हैं ना तो यहाँ पे आप कर्नल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल लिख दें या जो उसकी वैल्यू बनती है, तो वो पॉलिनोमियल टाइप डाटा की जरूरत है। लेकिन आरबीएफ इज परफेक्ट इस टाइप का डाटा सेट की जिसमें आपको खुद ही नहीं पता कि डाटा सेट पॉलिनोमियल होगा ये क्या होगा। तो इमेजेस के लिए आरबीएफ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सही रहता है, आपने भी यहाँ पे आरबीएफ ही छोड़ देना। ऑल राइट, सो गोइंग फर्दर समवन सेज हाउ वी कैन चेंज कर्नल। सो सिंपली यहाँ पे कॉमा लिख के कर्नल लिखते हैं और RBF, यहाँ हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं बट वी डोंट नीड टू चेंज इट राइट नाउ बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट, ओहो जस्ट रिटेन द मॉडल। ओके, नाउ हम टारगेट और प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। नाउ व्हाट आर टारगेट्स, सी इट वेरी डीपली। हमने टेस्ट सेट बनाया था कि भाई हमारा ये टेस्ट सेट है। किस तरीके से बनाया था, क्योंकि हमने ट्रेन सेट बनाया था नंबर ऑफ सैंपल्स के 75% की वैल्यू फाइंड करके। बाय द सेम वे जो रेस्ट वैल्यू 25%, हम किस तरह उसका टेस्ट सेट निकाल रहे होंगे, क्योंकि वही 13 14 7 वैल्यू हम यहाँ पास कर रहे होंगे इनिशियल, और यहाँ पे कॉलम डाल के ब्लैंक छोड़ देंगे। मतलब 13 47 से वो इंक्लूसिवली स्टार्ट होगा और बिल्कुल एंड तक जाएगा। सेम विल हैपन हियर, सेम विल हैपन हियर। यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, ये वो है जो एक्चुअल वाई ऑफ टेस्ट सेट। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेडिक्टेड वाई ऑफ टेस्ट सेट। बहुत बड़ा हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। हमारे मॉडल का नाम मॉडल था और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज। एक्स हमारे पास डाटा के नाम से था, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पास कर दी और एक्स के अंदर हमने वही मतलब 25% जो डाटा था हमारा हमने वो पास किया। तो उसके बाद वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज डेवलप कर देगा। अब जब हमें मालूम करना होता है ना कि एरर रेट कितना है, तो उसका एक स्मॉल तरीका होता है जो कि मैंने पहले बताया था कि एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड। इसमें वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि अगर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो मतलब कि जो वाई से प्लॉट की है वो एक्चुअल वैल्यू से नीचे की है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू ऊपर निकल गई। और कोई खास का डिफरेंस नहीं होता। यहाँ हमने एक्चुअल वाई ले लिया, यहाँ पे हमने प्रिडिक्टेड वाई ले लिया, और ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होगी क्योंकि हम कई दिनों से इसको करते आ रहे हैं। Now what we gonna do, we gonna print an error matrix and accuracy score. All right, यहाँ आ गया है एक tricky part. So let's first run this. All right, so we are getting very good accuracy even on the test set and it's 94%. 0.94 का मतलब है 94% accuracy. So now what's happening here? यहाँ तो इतना बड़ा accuracy matrix बन गया, वहाँ पे तो हमारे पास 2x2 का matrix था। So if you start counting number of matrices, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमारे पास बेसिकली 10 by 10 का मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है। Why? Just spend a little brain thing here. हमारे पास 8 by 8 की एक तो पहली बात इमेज थी, और दूसरी बात हमारे पास फिर हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, टारगेट जो हमारे पास लेबल्स होता है। अब हमारे पास सिर्फ 0 और 1 नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर 0 और 1 नहीं है,
हमारे पास टोटल प्रिडिक्टेबल वैल्यूज कितनी है? जस्ट थिंक दिस अबाउट अगेन। कितनी प्रिडिक्टेबल वैल्यूज हमारे पास? 10 प्रिडिक्टेबल वैल्यूज हैं। हाउ मेनी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 10 प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो थी हमारे पास, ये उन 10 बाय 10 वैल्यूज का मैट्रिक्स डेवलप हो रहा है। ये क्या कर रहा होगा कि जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 थे, क्या उसने उन सबको 0 प्रिडिक्ट किया? हाँ भाई, 0 प्रिडिक्ट किया है। उसके अलावा क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे पास और भी कोई दूसरे नंबर हो, उसने उसको 0 प्रिडिक्ट कर दिया? तो इन अ वेरी रेयर सिनेरियो किसी एक को 0 प्रिडिक्ट कर दिया, और जो कि है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 को इसने 0 प्रिडिक्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे इसलिए 1 आ गया। तो बाकी जितने भी 0 है, मतलब मॉडल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। कहीं पे 2, 1, 1 आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो गई है। अदरवाइज आवर मॉडल इज परफेक्टिंग वेरी वेल। अगर हम जैसे बात करते हैं 47 की, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट, अब ये 6th पोजीशन पे है, और यहाँ से 6 पे ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 6 पे है, मतलब 7th पोजीशन है, मतलब इसकी वैल्यू होगी 6। मॉडल ने कितनों को एक्चुअल 6 थे और उनको 6 प्रिडिक्ट किया, तो यहाँ पे कोई हमारे पास दिखने को खास एरर नहीं आ रहा। 47 ऊपर 1 है, जो कि 5 पे मेरे ख्याल से डिनोट हो रहा है। तो ये पहले हमारे पास 0 और 1 का मैट्रिक्स था, अब हमारे पास 10 डिफरेंट प्रिडिक्टेबल वैल्यूज हैं। हमारे पास 10 का मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? और या मैं इसको थोड़ा और लेवल में जाकर समझाऊं? Someone has already mentioned that it is because we are predicting 10 digits. Yeah, so we just we just learn this thing here right now. Okay, so sir, what is matplotlib.cm as CM? All right. तो matplotlib.cm हमने इंपोर्ट किया, जिसका अब हम काम करने वाले हैं। डायरेक्ट वहीं जाकर समझते हैं कि matplotlib.cm हमने क्यों इंपोर्ट किया। ऑल राइट, सो ये हमने कोड कल ट्राई किया था, जो C1 लाइब्रेरी से हम यूज़ करते हैं। C1 के लिए numpy pandas इंपोर्ट होनी चाहिए ऑलरेडी, और इसी को हम थोड़ा विजुलाइज फॉर्म में देख लेंगे। कभी भी किसी बंदे को, क्लाइंट को इस तरह मत दिखाना, वो बेचारा खुश्क हो जाएगा, समझ नहीं आएगा उसको इस तरीके से दिखाओगे तो उसको अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे तो देख के पता लग रहा है कि सारे ही 0 हैं, बिकॉज 6 उन सब के आगे इतना कम वैल्यू रखता है कि वो उतना ज़्यादा शेडेड नहीं हो रहा। 1 की कोई वैल्यू नहीं आ रही उसके आगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास 10 बाय 10 का मैट्रिक्स हो, 12 बाय 12 का मैट्रिक्स हो, 14 बाय 14 का मैट्रिक्स हो, आपके पास इसी फॉर्मेट में डायगोनल बन रहा होगा। तो इसी फॉर्मेट में डायगोनल बनना चाहिए है आपके पास, कि टॉप बॉटम से स्टार्ट हो, मतलब 0 0 पे ही हो, 1 1 पे हो, 2 2 पे हो, 3 3 पे हो, 4 4 पे हो। 4 4 पे सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए। अगर इधर उधर वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है, तो मतलब आपकी एक्यूरेसी गिर रही है, और ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी एक्यूरेसी भी दीवाना कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 0.9 एक्यूरेसी आ रही है, विच इज प्रीटी गुड फॉर नॉर्मल सिनेरियोस विदाउट एनी ऑप्टिमाइजिंग एनीथिंग। यहाँ पे हमने हीट मैप का कोड, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे टारगेट हम डाल देंगे, यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस हम डाल देंगे, और ये कहाँ डाल रहे हैं हमने? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। बट पूरा का पूरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का फंक्शन आपने उठाना है, जो कि आप यहाँ प्रिंट कर रहे थे, वो उठा के आपने डाल देना है SNS.heatmap के अंदर, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा होता है एक मैट्रिक्स, और उसको चाहिए होता है ऑलरेडी एक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने एक मैट्रिक्स डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया एनोट इज इक्वल टू, तो आपके पास यहाँ पे एनोटेशंस आ जाएंगी। और यहाँ पे आपने लिख दिया सी मैप इज इक्वल टू ब्लूज, तो यहाँ पे कलर हमारे पास ब्लूज आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि रेड में इसके पास है या उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं है, मेरा फेवरेट ब्लू ही है। ऑल राइट, सो रेड भी हमारे पास चल गया। सो दिस इज हाउ वी कैन हीट मैप दिस एरर मैट्रिक्स। नाउ गोइंग फर्दर, जहाँ पे हमारे पास सी मैप का काम था, या यूं कह लें कि मैटप्लॉट.cm का काम था। मैटप्लॉट.cm से हमने यूज किया था .cm, मैटप्लॉटलिब से हमने cm यूज किया। फॉर व्हाट वी आर यूजिंग cm नाउ? नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली। plt.imshow, plt.imshow का फंक्शन क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, जस्ट इमेज विजुलाइज करता है।
कैसे करते हैं इमेज विजुलाइज? आप उसको पास करते हो एरे और वो उसको करता है विजुलाइज। सी मैप क्या कर रहा होता है? सी मैप के अंदर आपने लिख दिया प्लॉट डॉट सी एम डॉट ग्रे अंडरस्कोर आर। ये सिंपल आप ऐसे डाल देना है, कुछ भी नहीं करना उसमें छेड़खानी। ये क्या कर रहा है कि वैल्यूज के मुताबिक उसकी वैल्यूज मतलब अगर कहीं पे 46 वैल्यूज आ रही हैं, कहीं पे 0.7 वैल्यूज आ रही हैं, तो मैक्सिमम वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो तमाम कलर्स को मैप करेगा अकॉर्डिंग टू ग्रे स्केल। और जहाँ पे आपके जितनी कम कलर इंटेंसिटी होगी वहाँ पे फिर आपके पास उतना ही ज़्यादा मतलब ब्राइट वैल्यूज आ रही होंगी, जितनी कलर इंटेंसिटी हाई होगी वहाँ पे उतनी डार्क पिक्सल डेवलप हो रहे होंगे। इंटरपोलेशन को आप रहने दें, इंटरपोलेशन हमने नियरेस्ट यूज़ की है। ये हम इमेज प्रोसेसिंग ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी जो चीज़ चल रही है उसको डो नॉट डिस्टर्ब हो। ऐसा होता है भी है, जो चीज़ मैं पहले कह देता हूँ कि अभी इसको डिस्कस नहीं करो तो आगे जाके हम पढ़ चुके होते हैं। सो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन नियरेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें कम्पैक्ट रहेंगी। नाउ वी आर सेइंग हियर प्रिंट इज इक्वल प्रिंट प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट इमेज मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डेटा -5 डॉट रीशेप 1 कोमा -1। नाउ व्हाट आर वी डूइंग हियर? हमारे पास डेटा के अंदर वैल्यू थी या नहीं थी? हमने उसको रीशेप किया। रीशेप क्यों किया? हम चाहते हैं कि सिंगल एरे में दिखाए, डबल एरे में ना दिखाए। रीशेप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मॉडल कन्फ्यूज हो जाएगा। आपको जैसे मालूम है कि प्रिडिक्शन के वक्त हम रीशेप करते हैं, तो अगर नहीं भी करेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा तो आपका मॉडल काम नहीं करेगा इतना अच्छा खास। अभी कर भी जाएगा तो प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम इमेज शो करी किसकी? इस वाले एरे की। वो गया डाटा डॉट इमेजेस के पास और उसने सेकंड मतलब अभी कह लेंगे 55th लास्ट इमेज उठाई है। माइनस इस रिप्रेजेंटिंग के नीचे से काउंटिंग करो, लास्ट से काउंटिंग करो, तो उसने 55th लास्ट इमेज उठाई है और उसने वो यहाँ पे विजुलाइज कर दी। जब हमने लिखा है यहाँ पे पीएलडी डॉट शो, हम चाहें तो उसको पीएलडी डॉट शो को अगर हम ऊपर कर जाएं, ऊपर ले जाएं, तो इमेज पहले आ जाएगी हमारे पास और टेक्स्ट प्रिडिक्शन बाद में आ जाएगी। तो इमेज हमारे पास पहले आ गई। अब क्या प्रिडिक्ट कर रहा है वो उसको, या यूं कह लें कि उसका लेवल की वैल्यू क्या थी? तो अगर हमें लेवल की वैल्यू मालूम करनी हो बाय प्रिडिक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। यहाँ पे हमने वही इमेज का डाटा पास किया बाय यूजिंग डॉट रीशेप 1 कोमा -1। वो इमेज का डाटा उसके पास गया मॉडल के अंदर इन फॉर्मेट ऑफ नमपाई। वो ट्रेन उसने प्रिडिक्ट किया और क्या प्रिडिक्ट किया? माइनस उससे प्रिडिक्ट किया 2। अगर आप देखें तो एक इंसान ह्यूमन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये एक 2 ही है और ये उसकी प्रिडिक्शन भी क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। अब हमें तो नहीं मालूम कि ये वहाँ -55 में क्या रखा है, 2 ही रखा होगा ऑफकोर्स। अगर हम यहाँ वैल्यूज चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 55 करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी ताकि जो हम इमेज विजुलाइज कर रहे हैं उसी की ही प्रिडिक्शन मालूम करें। सो इफ यू रन दिस, ऑलराइट, अब ये 0 आ रही है। बाय क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक 0 है। और यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन जो मालूम कर रहे हैं वो एक 0 की है। मैं आपको इन फ्यूचर ये भी समझाऊंगा दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा सेट एज वेल। सो डोंट वरी, someone has asked can I create my own data set? Yes, you can create your own data set, and how can it pre-process it? लेकिन उससे पहले आपके पास इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट होना चाहिए, फिर आप अपना डेटा सेट यूज़ करते रहें और वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। ओपन सी में यूजुअली लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं, योर ऑन डेटा सेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू विजुलाइज हो रही है या जो नंबर विजुलाइज हो रहा है, मॉडल उसकी वही प्रिडिक्शन दे रहा है। मॉडल को नहीं पता कि ये क्या नंबर है, मॉडल को बस जा रहे नंबर्स, वो इमेज कंप्रेस नंबर्स में होकर मॉडल के पास सिर्फ वो आ रही हैं और मॉडल उन नंबर को समझ कर बता रहा है कि वो 0 है, क्योंकि मॉडल के पास उसका लेबल मौजूद था जिसपे वो ट्रेन हुआ हुआ है। ठीक है, ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिडिक्शन दे देंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि वो प्रिडिक्शन क्या दे रहा है। तो हम अपनी विजुलाइजेशन के लिए कि ये वाकई 0 है या नहीं है, हम नंपाई एरे में नहीं समझ सकते, तभी हमने यहाँ पे उसको विजुलाइज किया यूजिंग बाय यूजिंग प्लॉट डॉट इम शो। या सी मैप हमने यूज किया था कि वो ग्रे स्केल के अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी बाय कलर इंक्रीज कर दे और डिक्रीज कर दे या स्केल अप कर दे, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रेडिक्शन। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये सबके समझ में बिल्कुल परफेक्टली आ गया होगा। ओके, ओके,
गुड क्वेश्चन आई एम हैविंग, ओके लेट मी डिस्कस इट मॉडल के बाद. Okay, so you guys are having confusion in 55 and minus 55. Mod or predict में हमने क्या लिखा? No problem, I am going to explain this. Or some people are having questions regarding confusion matrix. So don't worry. First understand this thing, then we will switch back to confusion matrix if you haven't understand it well. It was my bad. All right. So now see this again with a very high concentration. यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं 55. हमारे पास डेटा सेट में कितने सैंपल्स थे? 1797 सैंपल्स थे, एज वी ऑलरेडी नो दैट. अभी अगर हमें पर्टिकुलर सैंपल मालूम करना हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 0 से लेकर 1797 तक सैंपल्स मौजूद हैं. जी सर मौजूद हैं. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 0 से लेके 1979 तक सैंपल में से कोई एक सैंपल मुझे उठाओ और उसको प्रिडिक्ट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे 100 सैंपल चाहिए, सॉरी मुझे 100 सैंपल चाहिए. हाँ, तो उस 100 में से मैं माइनस करूंगा 1 की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा 0 इंक्लूसिव होता है और लास्ट वैल्यू इंक्लूसिव होती है. तो 100 जो होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 99 होगा. इफ यू नो दिस एरे कंसेप्ट, and then we're gonna pass here 99 as well. Now why we are writing 99 is here, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं 99 सैंपल प्रिडिक्ट करूँ. ठीक है, अब प्रिडिक्ट करवाने के लिए मुझे सब यहाँ पे वैल्यू डालनी है और कहीं वैल्यू नहीं डालनी. तो मैं यहाँ पे 99 क्यों डाल रहा हूँ? भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रिडिक्शन जो दे रहा है वो सही दे रहा है? मैं यहाँ पे 99 डाल दूँ, वो प्रिडिक्शन दे देगा 1 2 3 और इट कैन बी एनीथिंग वाइस वर्सा. तभी ऊपर मैंने 99 दे के उस एरे को इमेज शो के थ्रू विजुलाइज किया है, ताकि एक इंसान ये तो देख सके कि क्या वो जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ एरर एज वेल, लेकिन 6% एरर रेट होगा क्योंकि हमारी 94 पॉइंट सम एक्यूरेसी है. सो 94% डेटा हमारा एक्यूरेटली ही प्रिडिक्ट होगा. तो अगर हम इस कोड को दोबारा अंडरस्टैंड करें, plot.im show और यहाँ पे लिखे हैं digits डॉट इमेजेस और उसमें लिखे हम 99. तो 99th नहीं है, ये 100 सैंपल है क्योंकि 100 माइनस 1 है. सी मैप हम यूज कर रहे हैं ताकि हम उसको ग्रे कलर के अंदर या ग्रे इंटेंसिटी में स्केल कर दें इंटरपोलेशन, ताकि सारे पिक्सल नियरेस्ट फॉर्म में रहें. देन वी आर विजुअलाइजिंग दिस इंटायर एरे इनटू एन इमेज फॉर्मेट. फिर प्रिंट किया हमने क्या? प्रिडिक्शन फॉर अ टेस्ट इमेज. वही वैल्यू डालेंगे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वही वैल्यू हम यहाँ पे डाल दी. मॉडल डॉट प्रिडिक्ट पे हम क्या डाल रहे हैं? डेटा, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं 99. ये क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली? अगर हम ऊपर जाएं, ऊपर जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे हम सैंपल्स दे रहे थे ट्रेन करने के लिए. यहाँ पे ऊपर हम कभी ऊपर हम लोग सैंपल दे रहे हो, कुछ ना कुछ हम कर जरूर रहे थे. मतलब यहाँ पे हमने डिजिट्स डॉट इमेजेस जो थी रिशेप करने के बाद डेटा के अंदर लिया था. एम आई राइट? अब उसके बाद हमने क्या किया? हमें डेटा के अंदर लेने के बाद हमने उसको यहाँ पे ट्रेन किया था मॉडल के अंदर. तो यहाँ पे हम लोग सैंपल नंबर डाल रहे होते हैं टू ग्रैब दो यू कैन से सैंपल्स. हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स नहीं है, ये तो हम कॉलम नंबर डालते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो हमें यहाँ पे सैंपल नंबर डाल रहा है. तो सैंपल नंबर डालते वक्त यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग सैंपल का नंबर डाल रहे हैं, जैसे ऊपर डाला था वैसे यहाँ नीचे डाल रहे हैं. यहाँ पे हम डिजिट्स डॉट इमेजेस क्यों लिख रहे हैं? ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है, ये हमने रीशेप नहीं किया हुआ. यहाँ पे हमें रीशेप करना है उसको ऑलरेडी, और 99 हमने यहाँ पे यूज कर लिया डाटा के अंदर. और ये टेस्ट सेट के अंदर से भी हो सकता है और ट्रेन सेट के अंदर भी हो सकता है. अब 99 जो कि 1300 सम वैल्यू से कम है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेन सेट में से होगा और इसकी काफी हद तक अच्छी प्रेडिक्शन दे देगा. सो इफ यू सी दिस, ये तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जहाँ तक मैं देखूँ ये मुझे 1 लग रहा है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट 1. तो अगर इसको नीचे हम चेक करें, या सो प्रिडिक्शन फॉर दिस टेस्ट इमेज इज 1, बिकॉज ये आपको 1 के अलावा मेरा नहीं ख्याल आपको ये कुछ और लग रहा हो. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैविंग सच अ फैटी स्टमक, बट इट्स 1. अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेस्ट सेट से ऊपर की बात करें, तो मतलब हमारा टेस्ट सेट था 1347 के बाद वाला डेटा सेट. तो यहाँ पे हम डालते हैं 1500.
All right, so now I'm having here 1500. मुझे लग रहा है ये भी वन ही होगा, या ये भी वन ही होना चाहिए। या इत्तेफाक से 1500 सैंपल पे भी वन का ही इमेज पड़ा था, तो यहाँ पे वन की इमेज दिखा रहा है हमको और इसकी प्रेडिक्शन दे रहा है कि हाँ भाई वन ही है। इसमें अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि भाई इसमें ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि हम इमेज दिखा रहे हो बाय कैमरा और तब ये प्रिडिक्ट करें, सो डोंट वरी, वी आर वेरी नियर टू दैट पाथ। और जितना भी अपना पढ़ लिया उतना भी और पढ़ना है उसके लिए, फिर हम रियल टाइम भी फेशियल रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन सब करेंगे। मशीन लर्निंग उस वक्त तक एंड हो रही होगी, देन वी विल सी यू इन इंशाल्लाह इन डीप लर्निंग। एंड डीप लर्निंग के अंदर तो जो स्टूडेंट्स आएंगे, मोस्टली ऑफ देम गोना से कि इट्स विल बी बेटर इफ वी लर्न बाय पेइंग हिम, बिकॉज आई हैव डिजाइन दैट आउटलाइन वेरी वंडरफुल। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सॉरी फॉर दैट। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी अगेन। इट्स 9:04। अच्छा, सो समवन आस्किंग कि 0 से 1797 तक जा सकता है ना, तो माइनस क्यों यूज करा? और एक ने ये पूछा है कि नियरेस्ट के अलावा कोई इंटरपोलेशन होती है? जी बिल्कुल होती है, वो इमेज प्रोसेसिंग के वक्त ही देखेंगे, अभी आप उसको छोड़ दें बिल्कुल। ऑल राइट, सो यू गाइज वांट दिस वर्कशॉप फाइल। आप सिंपली कुछ भी नहीं करें, कोलैब खोलें और यहाँ से मेरी आसान काम बता रहा हूँ आप लोगों को। आसान काम ये है कि यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करें और यहाँ कोलैब पे जाकर रन कर दें, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, स्पेशली फॉर दिस वन। टेक्स्ट वैक्स तो एक अलग चीज़ है, एजलिस में डाल दिएगा गिटअप के ऊपर, अपनी गिटअप पे। उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गिटअप आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगा देगा, बिकॉज ऊपर नोटबुक बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट करें, इसको रिक्रिएट कर दें, गिटअप पे डाल दें। इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एज वेल टू सी दैट एंड शेयर इट इन डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल। अब किसी ने बोला है कि भाई 0 से लेकर 1797 तक तो जा रहे हैं, लेकिन माइनस भी जा रहे हैं। ऑलराइट, समझ गए भाई? तो भाई देखो, 1797 तक हम नहीं जाते। जब हम 0 इंक्लूड करते हैं तो मतलब हम लोग 1796 तक जा रहे हैं। माइनस का मतलब क्या होता है कि हम लोग -1 बता रहा है कि ये नीचे से शुरू होगा। 0 के पीछे अगर जो -1 है ना, तो उसका मतलब ये कि 1797 सैंपल के बाद जो भी मतलब 1797 जो लास्ट सैंपल है ना, -1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब नीचे से काउंटिंग शुरू करो। जब नीचे से काउंटिंग शुरू करते हैं ना, तो हम 0 से काउंट नहीं करते, हम -1 से काउंट करते हैं। तो -1 से हमने लिख दिया। अब मतलब ये लास्ट सैंपल की प्रिडिक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पे लिख दूं -1, तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा 8 है, लेकिन मॉडल ने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो इट्स आइडेंटिफाइंग इट लाइक प्रिडिक्शन फॉर टेस्ट इमेज इज 8। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे लास्ट में 8 पड़ा हुआ था, तभी उसने 8 दे दिया। और एक चीज़, हाँ, अगर आपको चेक करना हो ना कि ये लास्ट ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने लेबल्स प्रिंट किए, तो तुम्हारे पास यहाँ पे लास्ट के अंदर 8 आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें, तुम्हारे पास यहाँ लास्ट में 8 है, सेकंड लास्ट में भी 8 है और थर्ड लास्ट में भी 8 है। तो अगर हम यहाँ वापस जाएं और इधर ट्राई करें इस जगह पे सेकंड लास्ट, एंड देन वी ट्राई हेयर सेकंड लास्ट एज वेल, और फिर अगर हम उसको रन करते हैं तो 9 हमारे पास वैल्यू बन रही है। आई होप यू कैन क्लियरली सी दिस। और 9 ही हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही है। अंडरस्टैंड दिस, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? या एग्जैक्टली, दीज आर इंडेक्स वैल्यूज एंड विल डू मेनी थिंग्स अगेन। अभी इसके बाद हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन के बाद as far as now we have naive Bayes, then we are having decision trees, then we are having random forest classifier, we will see multiple things there as well। और उसके बाद we gonna jump into unsupervised learning। supervised learning आपकी खत्म हो चुकी होगी, you will be like level, you have completed level 1 of machine learning, level 2 of machine learning। level 1 रिग्रेशन में खत्म हो गया, level 2 आपका क्लासिफिकेशन में खत्म हो चुका होगा। So alright, in this for this support vector machine, आपको कोई confusion हो तो मुझसे पूछ लें, और बाकी अगर किसी को आउटलाइन का और मजीद पूछना तो वो डिस्कॉर्ड पे ही मुझसे पूछिएगा, अदरवाइज वर्कशॉप की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है।
All right, anyone? I want to train quadcopter for my final project. Yes, you can do it. I will suggest you use Raspberry Pi, और अगर आप इसको autonomous बनाना चाह रहे हैं तो वो तो खैर अभी हम टीच नहीं कर रहे, we will gonna teach this in coming program जो अक्टूबर के बाद है. सो ये तो फिर उसी में ही आप सीख सकते हैं. अभी तो हम लोग वो बहुत हाई लेवल चीज़ है. क्वाडकॉप्टर के अंदर आप ट्रेन करके जो आप फॉरेन प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, मीन्स यू वांट टू मेक एन ऑटोनोमस क्वाडकॉप्टर. नो वरीज, इट्स इजी थिंग. We'll do that too, but not in machine learning and of course in deep learning. So any other question regarding support vector machine? ओके, इसका डेटा कहाँ से आएगा? जैसे कि मैंने बताया, ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कोलैब, सॉरी, scikit-learn का अपना डेटा सेट था ये, मैंने इसको वहाँ से इंपोर्ट कर लिया. और अगर आपको इसके ऊपर KNN भी अप्लाई करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपको देखना हो कि एक scikit-learn के और कौन कौन से डेटा सेट है, सिंपली नेविगेट टू गूगल, रन राइट sklearn डेटा सेट्स. सबसे इजी डेटा सेट मुझे आज के लिए यही लगा है. That is why I opened this. अच्छा, ये कुछ मशहूर डेटा सेट आ रहे हैं. सबसे मशहूर डेटा सेट जो है ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा सेट. जो ये वो डिजीज है जो यूजुअली वुमेन के अंदर बहुत जल्दी होनी शुरू हो गई थी, एंड मशीन लर्निंग वाज द फर्स्ट यू कैन से इन्वेंशन जो कि इसको आइडेंटिफाई कर रहा था. यूजुअली इन अर्ली एजेस नॉट एवरीवन कैन, ह्यूमन आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ कैंसर. इसी तरह की हमारे पास एक लोड बोट्सन है, ये मुझे नहीं पता है किसका डेटा सेट है. इस पर हमारे पास आयरस का डेटा सेट है. ये आखे लीव्स टाइप का डेटा सेट है किसी चीज़ का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हमारे पास डायबिटीज़ पेशेंट्स का डेटा सेट है हमारे पास डिजिट्स का डेटा सेट है जो आज हमने यूज़ किया. फिर हमारे पास वाइन क्वालिटी का डेटा सेट है, ये बहुत बेहतरीन डेटा सेट है. ये भी SQL ने खुद डेवलप कर रखा है. तो आप यहाँ पे अगर जाएँ वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप लोगों को API भी देते हैं कि आप डायरेक्ट नेट से उठा लें, या सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल लोड बोस्टन करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा बोस्टन का डेटा सेट हमारे पास आपके पास आ जाएगा. और अगर आपको डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है तो कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, 506 कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी लिखा है यहाँ पे. क्या इन्फॉर्मेशन है उनमें, कौन सा एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी लिखा है. कोई मिसिंग वैल्यू है नहीं है, सब बता रखा है. अगर यहाँ पे जाएं, ये देखें, ये लीव्स का था आयरस प्लांट डेटा सेट. यहाँ पे वही सिपाल लेंथ, पेटल लेंथ, ये वही वाला डेटा सेट है जो हमने पहले काम कर रखा है इस पे. अगर हम और नीचे जाएं, डायबिटीज का डेटा सेट आ गया कि किसको डायबिटीज कितनी एज में हो सकती है, कैसी है, वही चीज़ बता रहा है. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव ऑप्टिकल रिकॉग्निशन ऑफ हैंड एंड डिजिट्स डेटा सेट. आज हमने यही डेटा सेट यूज़ किया जिसके अंदर हमारा नंबर ऑफ इंस्टांस 5620 थे, नंबर एट्रीब्यूट 64 थे, 8x8 image of integer pixels is range 0 to 16. All right, no missing values. और ये बहुत पुराना डेटा सेट अभी का भी 1998 का है. उसके बाद आपका और डेटा सेट आ गया, ये वाइन क्वालिटी का, वाइन उसका आ गया, वाइन रिकॉग्निशन या वाइन क्वालिटी जो भी है. उसके अलावा और मजीद डेटा सेट्स हमारे पास, या आपका ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट आ गया. उसके बाद आपके पास रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स भी आ गए जिनको आपको शायद खुद से प्रोसेस भी करना पड़े. So there are so many data sets, you can find any data sets you want, डाउनलोड कर लेना यहाँ से, या डायरेक्ट ऐसे ही लोड कर लेना. Alright guys, any further question? Any further questions, please let me know. Okay, so everyone saying thanks for great session. So thanks for coming and attending this wonderful session. So I have noticed a little bit decrement in regular attendees rate. So but what is my happiness is कि जो आ रहे हैं they are learning. So I want to learn this pretty well, because after this 30 days we're going to ask people कि किसने क्या बनाया रहते हुए. Then we're going to ask some positive reviews as well, 5 to 6 to feature at Google channel and Google Stories as well. जो कि टाइम इतनी है, एक तो मैंने ले लेती है, but if you are going to feature at there, so क्या बुराई है. Yes, someone asked, will we be notified for deep learning workshop? Yes, we're going to notify you for deep learning workshops as well. And of course, our Facebook pages and Instagram pages are enough for that. And we can also email you for that as well. आप chapter
चैप्टर को आप साइन इन कर लें और साइन इन करने के बाद मतलब ज्वाइन कर लें चैप्टर को। वेबसाइट आपको ऑलरेडी दी हुई है सर सैयद की, वो ज्वाइन कर लें तो आपके पास जब जब नया इवेंट पब्लिश होगा आपके पास नोटिफिकेशन वैसी आती रहेगी। ऑलराइट, डाटा आज इंपोर्ट कैसे किया? देखिए जितना भी इनका अपना डाटा होता है ना, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती आपको, मतलब इंपोर्ट करने की जरूरत होती है लेकिन इस तरीके से नहीं कि डाउनलोड करने की जरूरत पड़े। आप सिंपल यहाँ पे लिखो फ्रॉम sklearn import datasets, और जहाँ भी आपको डाटा सेट यूज़ करना है वहाँ पे आप उसका नाम दे दो। यहाँ इसका नाम है लो डिजिट्स। अगर आपको डाटा सेट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कहाँ लिखा होता है वैल्यू का नाम? ऊपर लिखा हुआ शायद। ऑलराइट, तो थोड़ा ऊपर और चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ओके ओके, हाँ तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो ये लोड बोस्टन से लेके सारे हमारे पास इनके नाम लिखे हुए हैं, आप कोई सा भी यूज़ करेंगे तो वो आपके पास वही डाटा सेट खुल के आ जाएगा। आप पर्टिकुलर उस पर क्लिक कर दें, आपके पास सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। और विजुलाइज करना हो आपको तो आप पाइथन से भी विजुलाइज कर सकते हैं, देयर इज़ नो वरीज। आपको इतना कुछ सिखा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? नो? All right, then we're gonna end our today's session. कोई क्वेश्चन और डिस्कॉर्ड पे पूछ लीजिएगा, एंड रजिस्ट्रेशन टाइम विल एंड विद इन 30 सेकेंड्स। किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज रजिस्टर कर लें। एंड या ऑल राइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।